So we have already completed second exercise of chapter measures of dispersion, and now we will be starting with the third exercise. Before we start with third exercise, there are few formulas that we'll just make a note of it. So all of you write down heading combined mean. Heading डालो combined mean. This is the third lecture of MOD. Okay. Now what is combined mean, students? See, suppose there are there are two population, दो room है for example. In one room there are n1 number of persons, and the average marks scored by them is x1 bar. There's another room in which there are n2 number of students, and x2 bar is a average marks scored by them. Now suppose if I combine these two rooms, then what will be the combined mean of them? So x1 bar and x2 bar are the separate means, right? रूम वन का मीन, रूम टू का मीन. बट अगर मैंने कंबाइंड किया तो वो कैसे होगा? तो इसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन. सो कंबाइंड मीन is given by x bar, and the formula goes like this: n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2. So you already know n1, n2, x1 bar, x2 bar. You have to just substitute to get the answer of combined mean. So write down this formula, combined mean. Okay. Similarly, after this, we have combined variance. Variance. यहाँ पर डेटा क्या है? वन रूम जिसका नंबर ऑफ पर्सन n1 है, उसका एवरेज x1 बार है, और उसका वेरिएंस सिग्मा वन स्क्वायर है. अनदर पॉपुलेशन, उसका पॉपुलेशन n2 है, एवरेज x2 बार है, और उसका वेरिएंस सिग्मा टू स्क्वायर है. सिग्मा वन स्क्वायर, सिग्मा टू स्क्वायर, राइट? तो अब अगर मुझे इसका कंबाइंड वेरिएंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? कंबाइंड वेरिएंस, ओके. सो कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है n1 इंटू सिग्मा वन स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर n2 इंटू सिग्मा टू स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर whole upon n1 plus n2. Now you must be thinking कि सर n1 n2 तो ठीक है, मालूम है, सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर भी मालूम है, बट ये d1 d2 क्या है, राइट? तो d1 d2 जो है वो उसको बोलते हैं डेविएशन, राइट? सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेयर
D1 is a deviation of first mean from the combined mean. Okay, so you can see in the textbooks also, D1 is x1 bar minus x bar, and D2 is x2 बार माइनस एक्स बार. ये जो एक्स बार है वो कंबाइंड मीन है, यानी मैं एक्स वन बार माइनस एक्स बार करूंगा, एक्स टू बार माइनस एक्स बार करूंगा, तो मुझे डी वन डी टू आएगा, एंड दैट आई विल सब्सटीट्यूट देयर. ओके, सो प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला नाउ. कंबाइंड वेरिएंस. Combined variance. Yes, please complete this. सम स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम समझेंगे कैसे करना है. यानी देखो, कंबाइंड अगर वेरिएंस आया तो हमको कंबाइंड मीन तो निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक कंबाइंड मीन नहीं आएगा तब तक D1 और D2 नहीं आएगा, और D1 D2 नहीं आएगा तो कंबाइंड वेरिएंस भी नहीं आएगा. तो आपको कंबाइंड वेरिएंस के क्वेश्चन में भी कंबाइंड मीन तो पहले फाइंड करना ही पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. Now we know that, standard deviation is a root of variance. तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वही होगा, बस रूट लग जाएगा. सो कंबाइंड एस डी. तो दैट विल बी जस्ट रूट ऑफ n1 sigma 1 square d1 square plus n2 sigma 2 square d2 square upon n1 plus n2. Same way, where d1 is x1 bar minus x bar, d2 is x2 bar minus x bar. Please complete this. Okay.
Is it done, students? Okay. There is one more formula called as coefficient of variation. Coefficient of variation, which we write as CV also. Coefficient of variation. This is the formula of coefficient of variation. CV sigma मतलब standard deviation upon mean, right? Standard deviation upon mean into 100 और आंसर हमेशा परसेंटेज में आएगा इसका. ओके. Please complete this formula. Okay. Now we will start with exercise 2.3, question number 1. Let us read the question. Mean and standard deviation of two distribution of 100 and 150 items are 55, 46. So what is this all data given? 100 and 150 items. मतलब this is N1, this is N2. R मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. तो पहला वाला मीन है, दूसरा वाला स्टैंडर्ड डिविएशन है. पहला वाला मीन है, दूसरा वाला स्टैंडर्ड डिविएशन है. Then find the mean and standard deviation of all 250 items. Combined mean find करना है. So it's very simple. So let us first write down the data. Exercise 2.3. First question. पहले given क्या है? We'll write that. So we have N1 X1 bar
and sigma 1. We have n2 second population, x2 bar and sigma 2. Let me see. So 100 and 150 items, so it's 100, 150. मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, तो पहला मीन है फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, तो 55, 46, 50 मीन, 5, 40 एंड 6. क्वेश्चन में बोला है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब कंबाइंड मीन भी फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करना है. ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे सोल्यूशन. तो सबसे पहले तो कंबाइंड मीन हम फाइंड कर सकते हैं, सारे अवेलेबल है हमारे पास डेटा. सो कंबाइंड मीन x bar, the formula is n1 x1 bar, n2 x2 bar upon n1 plus n2. Substitute the values. So it's 100 into 50, 100 into 50 plus 150 into 40, n2 into x2 bar upon n1 plus n2. So it is 100 plus 150. Solve them. 100 into 50 is 5000. 15 fours are 66,000 upon 250. So it's 11,000 upon 250. Now if you try to cancel, so 0 gets cancelled. Then 25 ones are, this is 25 fours are 100, right? 10 बचेगा, वापस 25 fours हो जाएगा, right? So the final answer will be 44 as x bar. सबको समझा? Combined mean is x bar 44. Please write down this much first. Complete करो इतना पहले combined mean. So this is the first part, combined mean. Now combined standard deviation. Now see, to find combined standard deviation हमको पहले d1 d2 फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके फॉर्मूले में d1 d2 है. तो d1 का फॉर्मूला क्या था, x1 बार माइनस x बार, एंड d2 वाज x2 बार माइनस x बार. तो x1 बार कितना है, x1 बार है 50, तो ये 50 है, और x बार हमने निकाला अभी 44. x2 बार है 40 और x बार हमने निकाला है 44. So this is 6 and this is minus 4. Okay. So we have got d1 d2 and now we can apply the combined standard deviation formula. So therefore combined standard deviation is equal to, it's a standard deviation, so it's a root n1
sigma 1 square d1 square into sigma 2 square d2 square whole upon n1 plus n2. Substitute all the values which we know. So n1 was 100, sigma 1 sigma 2 will have to check, it was 5 and 6. Okay, so this will be like this, 5 का square प्लस d1 कितना आया था 6, तो 6 का स्क्वायर, n2 is 150, sigma 2 square, sigma 2 is 4, 4 का square, and d2 is minus 4, so this is minus 4 का square whole upon n1 plus n2. Solve this. 100, 25 plus 36, 150, 4 square 16 minus 4 square also 16 upon 250. Further solve करो, 100 into, this will be 61, 61 plus 150, 32 upon 250. सिग्मा 2 6 दिया है क्या, एक मिनट चेक करता हूँ, यस 5 एंड 6 है, ये 6 है स्टूडेंट्स है, मैंने 4 गलती से लिखा, सो इट इज 6 स्क्वायर, then it will be 36. So it will be 52. Okay, now solve this. So 6100 plus 0, 15 2s are 30, 3 carry, 15 5s are 65, plus 3, 68, 15 5s are 75, plus 3, 78, whole upon 250. Add them. So 2 zeros, 8 plus 1 9, 6 plus 7 13, 250, 0 0 cancel, तो अपने पास बचेगा ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसको 5 से कैंसिल करो, 5 5 ज़ा, दिस इज 5 2 ज़ा 10, 3 बचेगा 39, 5 7 ज़ा 35, 4 बचेगा 40, 5 8 ज़ा, राइट। सो नाउ इफ यू डिवाइड 27 278 by 5 in decimal, I will get 5 5 ज़ा 25, 28 बचेगा, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 55.6। आपको अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट का आंसर तो वो हम लिखेंगे, नहीं तो उधर ही हम स्टॉप करेंगे, कुछ तो नहीं दिया है तो विल स्टॉप इट देयर ओनली, यही आपका आंसर है, इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सबको समझा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला हम लोगों ने? तो पहले d1 d2 निकाला और उसके बाद फॉर्मूला पुट किया। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना, स्टार्ट सॉल्विंग इट।
यस, हैव यू ऑल स्टार्टेड दिस प्रॉब्लम? आपको वो रूट का सम वहीं पर छोड़ देना है, लास्ट प्रॉब्लम, उसके आगे नहीं सॉल्व करना है आपको रूट के साथ, क्योंकि वो इजी नहीं है ना वो कैलकुलेशन पार्ट, तो वहीं पर आपका फाइनल आंसर है। आपको मार्क्स भी फुल मिलेंगे उस टाइप के। एक क्वेश्चन में देखो मीन दिया है, तो x1 बार x2 बार, ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 और ये n1 n2। यहाँ पर मुझे केवल कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, कंबाइंड मीन नहीं। बट क्या लगता है कंबाइंड मीन फाइंड करना पड़ेगा क्या कंबाइंड एसडी के लिए? करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि D1 D2 बिना कंबाइंड मीन के तो आएंगे नहीं। तो जैसा हमने लास्ट प्रॉब्लम किया वैसा ही ये प्रॉब्लम है, बस नंबर डिफरेंस है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो जैसा लास्ट प्रॉब्लम किया वैसा ही स्टेप बाय स्टेप, पहले आप कंबाइंड मीन फाइंड करो, पहले डेटा लिखो, कंबाइंड मीन, फिर D1 D2। हाँ चलो स्टार्ट करो।
Yes. What is combined mean for this question? Question number 2. Combined mean 130 plus 170, 300 by 20. Yes, 15 is the answer, right? Combined mean should be 15. Yes, Rajesh, you are right. Combined SD will be root of 10.5. Yes. So 15 and root of 10.5 will be your answer. Three, four students have completed. Other students, please complete. So now let us start with question number 3. The question is calculate coefficient of variation of marks secured by a student in the exam where the marks are 2, 4, 6, 8, 10. हमको CV find करना है, coefficient of variation. So the formula for CV which we have seen was standard deviation upon mean into 100%. Do you remember? So we'll have to find out standard deviation and mean, right, to solve this problem. So let's start this problem. Question number 3. The data which is given is xi, 2, 4, 6, 8, and 10. Let me check again. Yes. So we have to find mean and standard deviation. So we should have xi square also for standard deviation. So we'll complete this table. 2 square 4, 4 square 16, 6 square 36, 64, and 100. We require the total of both x and x square. So 2 plus 4, 6 plus 6, 12 plus 8, 20 plus 10, 30. Here it will be 4 plus 6, 10, 16, 20, 0, 2 carry. 2 plus 1, 3 plus 2, 5 plus 6, 11, 1 carry. So it is 210. Okay. Now after this, first we will find out mean, that is x bar, which is total of x
upon n. So what is n here? Number of data, 5 datas are there. So this will be 30 divided by 5, and that will be 6. So x bar is 6. Okay. Then स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? एकदम स्टार्ट वाला फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर and everything inside the root, substituting all the values. This is 210 divided by 5 minus x bar, we have just now got it as 6, so it is 6 square. Now you divide 210 by 5, so 5 4s are 20, 1 will be left, 5 2s are minus 36. Now 42 minus 36 will be how much? 6. Please check the calculations. Have you all understood this? Mean and standard deviation. Now see, they have given here root 2 का value, but root 2 तो अपने को आया नहीं, root 6 आया. They would have given root 6 का value, right? That's why I asked you to check the calculation कि 6 ही आ रहा है ना, 2 तो नहीं आ रहा है. Thirty divided by 5 is 6 only, so it is coming root 6 only, no problem. So actually they should give you root 6 का value, students, because the formula is standard deviation upon mean into 100 ना, तो उसको solve करना पड़ेगा. तो रूट 6 का वैल्यू कैसे करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ पर नहीं दिया है, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं. तो क्लास 10th में आप लोगों ने रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू लर्न की थी मेंसुरेशन चैप्टर में. रूट 2 का वैल्यू था 1.41 समथिंग और रूट 3 का वैल्यू था 1.73 समथिंग. यस, ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने, रूट 2 एंड रूट 3 की वैल्यू. So we have to just multiply and get the answer then. Ideally they should give you root 6 का वैल्यू बच्चों, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन हमको नहीं करना होता है, उनको देना चाहिए रूट 6 की वैल्यू, बट नहीं दिया है, इसके लिए हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं. अभी देखो, मैं अभी नेट पे चेक कर रहा हूँ मैं कि ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है क्या.
लतिका 1.41 दैट इज द वैल्यू ऑफ रूट टू. रूट टू का वैल्यू होता है, जैसे रूट थ्री का वैल्यू होता है वैसे रूट टू का भी वैल्यू होता है. मुझे मिल नहीं रहा है कहीं, लेट मी जस्ट चेक. यस, आई गॉट इट. यह इसका देखो टोटल हम लोग ने मिस्टेक किया है स्टूडेंट्स. आप लोगों को बोला मैंने चेक करने को. इट्स 210 नहीं 220 है. देखो 10 10 20 0 2 कैरी 3 प्लस 3 6 प्लस 6 12 होता है ना. तो 2 और 1 कैरी होगा तो 220 है. सो 220 if I write here, and if you divide so it will be 44 then. And 44 रहेगा तो 44 minus 36 will be 8, राइट. तो देखो अभी कैसे सॉल्व हो जाएगा वो. 44 minus 36 will be 8, and 8 we know na, 8 is like 2 into 2 into 2. So one of the pair of 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, बाहर 2 हो जाएगा और ये रूट 2 हो जाएगा. एंड नाउ रूट 2 की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी थी ना 1.41, तो उसको सब्स्टिट्यूट किया 2 into 1.41. So it will be 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are 2. ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन. सबको समझ में आया? स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2.82. वो थोड़ा टोटल में मिस्टेक किया था, इसके लिए अपना वैसा क्वेश्चन आ रहा था. ठीक है, अभी हम लोग सीवी निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सो वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला फर्स्ट. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन is equal to standard deviation upon mean into 100%. Okay, so substituting the value, sigma x we have got as 2.82, x बार आया है 6 into 100. ठीक है, 100 का 2.82 में मल्टीप्लाई होगा तो 282 हो जाएगा अपॉन 6%. फिर क्या कैंसिल करो इसको 2 से, 2 3 ज़ा, 2 1 ज़ा, 4 ज़ा 1 ज़ा. फिर 141 को 3 से डिवाइड करो, 3 4 ज़ा 12, 21, 3 7 ज़ा 21, राइट. So I will get 47% as a final answer. Understood everyone? देख लो सीवी कैसे निकाला. पहले हमने मीन निकाला, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और फिर सीवी में सब्स्टिट्यूट करके सीवी का फाइनल आंसर निकालेंगे. क्लियर एवरीवन? Okay, moving ahead. Question number 4. Find the coefficient of variation. Find the coefficient of variation of a sample mean 25. Mean is given. Standard deviation is 5. यानी लास्ट क्वेश्चन में जो हमने कैलकुलेट किया वही यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये तो बस एक फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है. दैट्स ऑल. So let's see how to do it. This is question number 4. So mean is given as 25 and standard deviation is given as 5. We have to calculate CV. So we write the formula of CV, that it is standard deviation upon mean into 100%. Standard deviation is 5 upon 25.
into 100%. Cancel out 5 ones are 5 fives are, then 5 ones are 5 twenties are. So it will be 20 percentage. हो गया आंसर. Very simple. Complete this. Just formula लिखा, formula में substitute किया and got the answer. Complete fast and let me know if it is completed. Okay. Now, next question. Fifth one. A group of 65 students, so n is given 65, of class 11th have their average height. Average means mean is given. Coefficient of variation, CV is given directly. What is the standard height? So it's so simple. आपको CV दे दिया है और एक SD मिसिंग है, वो फाइंड करना है. तो पहले डेटा लिखते हैं क्या क्या दिया है. देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने बोले थे, 65. एवरेज हाइट वाज 150.4 and coefficient of variation is 2.5 परसेंटेज. तो हम लोग सीवी का फॉर्मूला यूज करेंगे. तो हमको क्या मालूम है, सीवी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100%, राइट. बट सीवी कितना दिया है, 2.5. तो सीवी की जगह लिखा 2.5% इक्वल टू सिग्मा नहीं मालूम है, एक्स बार दिया है 150.4 इंटू 100%. दोनों साइड परसेंट है तो परसेंट परसेंट तो कैंसिल हो गया. ठीक है. अभी आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर में है वो उधर न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई करेगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में जाएगा. तो आपके पास इधर सिग्मा बचेगा, इधर 2.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 150.4 का और डिवाइड होगा 100 से. अभी इसको सॉल्व करो. तो 25 फोर्जा 100, 0 10 कैरी, फिर 0, 25 फाइजा 125, so it will be 6, then 7 and then 3. But 2 digit पे decimal है तो 376 upon 100. Yes, 376 अपॉन 100 आया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.76. ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया. तो क्वेश्चन में यही तो पूछा था, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. यस, वेरी सिंपल. सीवी दे दिया था तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया. चलो कंप्लीट करो. बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग लिटिल बिट फास्ट. इट्स वेरी वेरी सिंपल. डन. ओके, मूविंग अहेड. क्वेश्चन नंबर 6. Two workers on the same job show the following result. Worker P, worker Q, mean time
ऑफ कंप्लीटिंग द जॉब, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी ये वर्कर पी का मीन, ये वर्कर क्यू का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्यू. Then what is given? The question is regarding the time required to complete the job. Which worker is more consistent? कौन सा वर्कर ज़्यादा consistent है? So it depends on CV. Yes student, CV का ये application का question है. जिस वर्कर का CV लेस होगा, देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब किसके अंदर काम में ज़्यादा चेंजेस है. अगर जिसके परफॉर्मेंस में ज़्यादा चेंजेस है तो वो कंसिस्टेंट नहीं हुआ ना. अभी आपने कभी 20 में से 18 लाया, फिर कभी 20 में से आपने 3 भी लाया, तो आप कंसिस्टेंट नहीं हो. बट अगर किसी बच्चे ने 20 में से 10 लाया, फिर 20 में से 11 लाया, फिर 20 में से 12 लाया, तो ही इज मोर कंसिस्टेंट. अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? परफॉर्मेंस एक जैसा होना चाहिए. तो जिसका सीवी लेस होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा, राइट. तो हमको यहाँ पर पी का सीवी निकालना है, क्यू का सीवी निकालना है और दोनों को कंपेयर करना है. पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो लेट अस डू दैट. सो पहले डेटा लिख लो. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. सो आई एम राइटिंग फॉर वर्कर पी फर्स्ट. तो वर्कर पी का जो मीन होगा उसको मैं पी बार लिख रहा हूँ, 33 दिया है. उसका जो स्टैंडर्ड डिविजन है उसको सिग्मा पी लिख रहा हूँ, दैट इज 9 गिवन. देन वर्कर क्यू, क्यू बार 21, सिग्मा क्यू इज 7. अब देखो दोनों का मुझे मीन मालूम है, दोनों का स्टैंडर्ड डिविजन मालूम है, तो दोनों का सीवी निकालेंगे अब हम लोग. तो सीवी ऑफ वर्कर पी क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी, मीन ऑफ पी, राइट, दैट इज पी बार इंटू 100%. कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 9/33 इंटू 100. इसको कैलकुलेट करो, 3 3 ज़ा 3 11 ज़ा, so it will be 300/11%. 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा, फिर 2 ज़ा, फिर 7 ज़ा, ऐसे आते रहेगा. 27.27 ये सीवी आया पी का. अब ऐसे ही हम निकालेंगे सीवी ऑफ क्यू. सीवी ऑफ क्यू वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्यू अपॉन क्यू बार इंटू 100%. उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 7/21 इंटू 100%. 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 100/3 आया परसेंट. इसको कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक इट विल बी 33.3333 आते जाएगा. अब हमको देखो सीवी ऑफ पी मिल गया और सीवी ऑफ क्यू मिल गया. क्या लगता है किसका सीवी लेस है? पी का सीवी लेस है, राइट. सो हियर CV of P is less than CV of Q. Therefore, worker P is more consistent, more consistent than worker Q. Q regarding the time required to complete the job. जैसा क्वेश्चन में है, regarding the time required to complete the job.
complete the job. I hope everyone understood this problem. Please complete it. ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, उसमें 2 क्वेश्चन है. प्लीज कंप्लीट एंड टेल मी अगर हो गया हो तो. Yes, I think everyone have done it. This is the first part जिसमें हमने CV निकाला. अभी देखो सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स. ये तो था रिगार्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड, कौन कंसिस्टेंट है. अभी क्वेश्चन 2 लिखा है विच वर्कर सीम्स टू बी मोर फास्टर. विच वर्कर सीम्स टू बी मोर फास्टर. तो फास्टर कौन होगा, जो ज्यादा काम कम टाइम में कंप्लीट करेगा, राइट. सो यहाँ पर आपको क्या लगता है विच पर्सन इज फास्टर. तो सिंपल है, वो देखने के लिए आपको किसको देखना है, एवरेज को देखना है. अभी वर्कर पी का एवरेज टाइम 33 है और वर्कर क्यू का एवरेज टाइम 21 है. तो क्या लगता है कि कौन फास्ट काम कर रहा है, क्यू फास्ट कर रहा है ना, क्योंकि वो कम टाइम में कंप्लीट कर रहा है जॉब को. तो सेकंड पार्ट का जो सोल्यूशन होगा बस उसको कंपेयर करके आपको लिखना है. सेकंड पार्ट सी क्या लिखना है, मेरे साथ लिखो. हियर क्यू बार इज लेस देन पी बार. क्यू बार छोटा है पी बार से. देयरफॉर वर्कर क्यू seems to be faster seems to be faster in completing the job. हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर. Q bar is less than P bar, therefore worker Q is faster. That's all. Now the seventh problem. See, in seventh problem it's exactly the same way. ये होमवर्क है सेवेंथ प्रॉब्लम, तो ध्यान से समझ लो कैसे करना है. देखो क्वेश्चन में दिया है अ कंपनी हैज 2 डिपार्टमेंट्स विथ 42 and 60 एम्प्लॉइज. तो ये क्या हो गया,
N1 42, N2 60। एवरेज वीकली वेजेस यानी एवरेज मतलब मीन, तो ये हो गया x1 बार, ये हो गया x2 बार। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये हो गया सिग्मा 1, ये हो गया सिग्मा 2। इज इट क्लियर यहाँ तक? N1 N2 x1 बार x2 बार सिग्मा 1 सिग्मा 2, यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करोगे आप? क्वेश्चन में बोला है विच डिपार्टमेंट हैज लार्जर बिल, विच डिपार्टमेंट हैज लार्जर बिल। तो लार्जर बिल कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? यस, लार्जर बिल कैसे डिसाइड करोगे? देखो लार्जर बिल तो एवरेज से डिसाइड होता है ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी था, कौन फास्टर है, राइट? तो जिसका एवरेज कम उस टाइम था, इसके लिए वहां पर वो फास्टर था। यहां पर देखो एवरेज वेगस 750 पहले डिपार्टमेंट का है, 400 रुपीज सेकेंड डिपार्टमेंट का है, तो इसका मतलब फर्स्ट डिपार्टमेंट का जो बिल है वो लार्जर है ना। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन में N1 N2 दिया था, x1 बार x2 बार दिया है और सिग्मा 1 सिग्मा 2। आपने x1 बार x2 बार को कंपेयर किया, x1 बार x2 बार को कंपेयर किया, जैसे यश जैसे सेकेंड प्रॉब्लम किया ना लास्ट का, वैसा ही है ये। किसका लार्जर बिल है वो कैसे डिसाइड होगा? उसके एवरेज के ऊपर। एवरेज देखो, एवरेज मतलब मीन। ये x1 बार है, ये x2 बार है, कौन सा बड़ा है? x1 बार। जो बड़ा है उस डिपार्टमेंट का बिल ज्यादा बड़ा रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इस तरीके से आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि विच डिपार्टमेंट हैज लार्ज वेरिएबिलिटी। अभी वेरिएबिलिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सीवी के ऊपर ना, क्योंकि सीवी का मतलब ही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। तो फिर आप क्या करोगे? सीवी फॉर कंपनी 1 निकालोगे, सीवी फॉर कंपनी 2 निकालोगे। कैसे? तो पहले का स्टैंडर्ड डिविएशन 8 डिवाइड बाई 750 इंटू 100, दूसरे का 10 डिवाइड बाई 400 इंटू 100। अब जिसका सीवी लेस आएगा, राइट, जिसका सीवी लेस आएगा वो क्या होगा? विच डिपार्टमेंट हैज लार्ज वेरिएबिलिटी इन वेजेस? तो आपको जिसका सीवी लेस आएगा इसका मतलब वो ज्यादा कंसिस्टेंट है ना। तो जिसका सीवी ज्यादा आएगा वो, उसके अंदर वेरिएशन ज्यादा हो रहा है ना। समझ में आ रहा है क्या? यहां पर कंसिस्टेंट का प्रॉब्लम नहीं है। कंसिस्टेंट कैसे डिसाइड करते हैं? सीवी लेस, अगर फर्स्ट का सीवी लेस आया तो फर्स्ट वाला ज्यादा कंसिस्टेंट है। पर यहां पर कंसिस्टेंट नहीं बोला, यहां पर बोला ज्यादा वेरिएशन किस में है, तो जिसका सीवी ज्यादा उसमें ज्यादा वेरिएशन होगा। ये समझ में आया क्या? तो आप सीवी ऑफ 1 निकालोगे, सीवी ऑफ 2 निकालोगे, उसमें जिसका सीवी ज्यादा रहेगा उसको बोलोगे वो कंपनी हैज लार्जर वेरिएबिलिटी इन वेजेस। ठीक है, तो ये आपको मैनेज करना है, ये क्वेश्चन इजी है, होना ही चाहिए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या करेंगे? इसका तो पहले पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, याद आ रहा है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फर्स्ट एक्सरसाइज, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो इसके आगे एक्स का कॉलम बनाते थे, फिर एफ एक्स का कॉलम बनाते थे, फिर एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाते थे। यस, और उसका यूज करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन फाइंड करते थे। याद आ रहा है कुछ? याद आना पड़ेगा। तो 8 और 9 प्रॉब्लम भी आपको, 8 9 10 तीनों प्रॉब्लम होमवर्क है। इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है, इसमें भी आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। हाँ, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, और भी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े बीच में, ऐसे तो कोई छोड़ा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 तक सारे क्वेश्चंस किए।
तो 7, 8, 9, 10 ये 4 प्रॉब्लम्स विल बी होमवर्क फॉर यू ऑन. क्लियर स्टूडेंट्स? इन केस अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेटली उसको सॉल्व करेंगे. ओके, so we will stop for the day here, students. See you in the next lecture. Till then you complete these problems. Okay, chalo, take care, bye bye.